Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Happiness plays an important role in education, as it can help students to stay motivated and engaged in their learning. When students are happy, they are more likely to want to learn and will be better able to pay attention, process information, and retain what they have learned. Studies have also found that when students are happy, they are likely to achieve more. Therefore, it is important for us to create an environment where a learner feels happy, safe, and supported. So, how can we create this environment using technology? Let's find out from our friend Yogesh Kochar. Hello Yogesh, welcome to the show. Hi, how are you? I'm good, Yogesh. Brilliant. So last time we talked a lot about happiness and tried to put that in perspective. And this time what we're going to do is we will ask Yogesh to take us on a journey of happiness and help us connect the dots. So Yogesh, are you ready for that? Yes, I am. I'm on the hot seat available to you. Grill me. So can you help us find out and connect these dots and take us on this journey of happiness through your medium? Correct. The formula of happiness is very simple. Okay? And then it gets complicated. Happiness is the distance between expectation and experience. You expect something, you experience it, you're happy. You expect something, you don't experience it, you're unhappy. Simple, right? It is all about controlling, containing your expectations, right? Well, God's gone ahead and given us a beautiful life, and He's gone ahead and given us a lovely mind. But the trouble is with the mind and the Six Sigma aspects of the mind that we spoke about in our last conversation. I think that's where the whole thing begins. So we need to exercise restraint. We need to be able to understand what is my expectation, and if my expectation is rational, then my experience will be beautiful. But if my expectation is irrational, then my experience will be not as good. I think Harry Potter played a huge role in terms of going ahead and conspiring with our minds and taking our minds away. उसने क्या किया कि एक झाड़ू के ऊपर चढ़ो और मैजिक कर दो और वो कहीं से कहीं पहुंच जाता था, तो हम सब लोगों ने सोचा ये तो संभव है. तो उसकी संभावनाओं की वजह से हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं चला जाता है और हम सोचने लगते हैं हम तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं जिंदगी में. So I think it is, to sum it up, it is the difference between expectation and experience, and that is happiness. And talking about happiness, now I would want you to take us through the dots of these chunks of happiness through your medium. Certainly. इससे पहले कि मैं आपको happiness की दुनिया में ले चलूं, उसी फोन के अंदर जो फोन आपका दिमाग खा रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि आप ये दस्ताने पहन लें. एक फोन जिसको हम अपने से दूर करना चाहते हैं. जी. We are using the very same phone to find happiness. So I'll be very, very interested and keen to find out how you're going to do it. Ji. So we're going to show you just that, and it'll be a beautiful journey for you and for our viewers to understand ये happiness बनेगी कैसे. सबसे पहले हम आपको बताते हैं happiness है क्या, right? Like I said, it is the distance between expectation and experience, right? Do I look like a magician already with a white glove? In a sense, you are. So we can lovely, say that. Lovely. So now if we can bring us down to my screen. So, I developed this app in a beautiful place called Yol. Yol is a small village in Himachal Pradesh. Okay, that's where I went. During COVID, I spent 2 years trekking with the shepherd and that sort of thing. And look at how inspiration strikes you. The name of the app is also Yol. And does YOL stand for something? YOL or? Yes. So we said YOL stands for your one life. Wow. Because you're the only one that live your life, right? Your children don't live it, your spouses don't live it, your partners don't live it. You live your own life. आप जहाज में सफ़र करें तो कहते हैं कि हवा में दबाव की कमी की वजह से अगर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाए तो अपने मुंह पे ढक के उसे सांस लेते रहें इससे पहले कि आप किसी और को भी पहनाएं. So it's very important first to be aware of your own breath, and your happiness is your breath. So therefore I named the app YOL. YOL stands for your one life. So each person's life is his own. अब आजकल
आप देखिए ब्लॉकचेन के संदर्भ में अगर बात की जाए तो लोग NFT बना रहे हैं. NFT क्या है? इट्स अ नॉन फंजिबल टोकन. व्हाट्स अ नॉन फंजिबल टोकन? You as a human being are non-fungible token because you're irreplaceable. I am irreplaceable. There isn't another of Vikas, there isn't another one of yogis. So we become NFTs, right? Your one life. So Your one life. I mean, anybody exploring this app would be exploring his or her one life that he or she has got. Absolutely, absolutely. And the second inspiration that came to me was from Steve Jobs, who we spoke about yesterday. By the way, you should know, Steve Jobs died a very sorry death. In his last comments that he made, including even in his book, and he says, I did not do anything. I did not do the thing that I should have done. So, you know, it's a good thing for us to be able to quote him saying Steve Jobs said this, Steve Jobs, but look at his life. The analysis of his life and the distillate of his life was this, that he died a very sorry death. And he said, I died a sorry death because I did not understand the meaning or the purpose of life. Yeah, precisely. Right. And we all are struggling somehow. Absolutely. And more so in wake of the 6 hours, 8 hours of screen time that we're utilizing on the phone, that is slicing, dicing and tossing our minds on social media. So we are disillusioned in our life. We are so for that very purpose, we need to find your one life, right? Correct. So we will find you, for you, your one life, right? Let's begin the journey. Thank you. So we spoke about happiness being the distance between expectation and experience, right? Yeah. So what is expectation? अब आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर हम ले जाएं आपको, तो स्क्रीन के ऊपर एक क्लैपर बोर्ड है. What is the clapper board? और हमने ग्लव्स दस्ताने पहन लिए, स्वच्छ भारत हो गए हम. तो जो क्लैपर बोर्ड है वो ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी एक फिल्म रील की तरह है. You know, your life is like a film roll and you're rolling your life, you don't even know how. जब तक अगर हम पिक्चर कोई देखने जाएं और उसके पिछले अध्याय से अगले अध्याय का कोई ताल्लुक ना हो तो हम तो पिक्चर से उठ के आ जाएंगे. लेकिन यही हमारे साथ हो रहा है. हमारे कल के या 1 मिनट पहले के व्हाट्सएप स्टेटस के बाद में हमारा अगला व्हाट्सएप स्टेटस क्या, वो तो हमें याद नहीं. जो हम लाइक करते हैं, जो हम स्पीक करते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया पे, वो तो हमें याद नहीं. जो हम पोस्ट करते हैं वो तो हमें याद नहीं. तो हमें वो तो याद नहीं जो हमने किया, और हम आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. So at one level we have a messed up life sometimes. Yeah. But at the other level we have a even further, messed up our life through social media or through, apps and through gadgets. Correct. So in that sphere, I mean, having another gadget or another application which helps us, get back to life. So that will be very interesting to, see and understand. Correct. अब मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, एप्स बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते ये कि हमें पता हो हमने यूज़ किस लिए करना है. और अगर उसका कोई यूज़ नहीं है तो हमने उसे रखा भी क्यों है. तो ये एक होर्डिंग की एक व्यवस्था चल पड़ी है. नहीं कि मेरे पास में इतने ऐप्स हैं, मेरे पास इतने फ्रेंड्स हैं, उनमें से आप पूछिए कौन आपके घर में रोटी पानी लेकर के आता है. कोई नहीं. सिर्फ वैलिडेशन के लिए आपने रखा है. और वो फेक वैलिडेशन जिसके बारे में हमने कल भी बात की कि फेक वैलिडेशन है, और लोग कहते हैं कि भाई हम इस पर डाल देंगे और लोग हमें लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट. सो हम ऐप के ऊपर चलते हैं. तो हमने ये कहा कि आपकी ज़िंदगी एक फिल्म रोल की तरह है, तो उस रोल को शुरू करते हैं. अभी आप देख रहे हैं कि इस क्लैपर बोर्ड के दोनों आर्म्स क्लोज्ड हैं. ऊपर के आर्म पे येलो है और नीचे के आर्म पे ग्रीन है. इसके ऊपर ये लेजेंड है. ये लेजेंड है जो कि आपको हैप्पीनेस का लेजेंड दिखा रहा है कि सुबह ये दोनों आर्म्स खुले होते हैं यूं करके. तो उसके बाद में आप उन आर्म्स के ऊपर में डॉट्स होते हैं. तो आप सिलेक्ट करते हैं कि आपका आज वाला दिन कैसा होने वाला है. व्हाट्स योर फोरकास्ट फॉर द डे. ओके, सो यू सिलेक्ट रेड, ग्रीन और येलो. और आपका कल का दिन कैसा था, तो आप कहते हैं रेड, ग्रीन और येलो, राइट. अब हमने क्या कहा, हमने कहा इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंस. अगर आपने ये एक्सपेक्ट किया कि आपका आज का दिन आने वाला ग्रीन है, तो आने वाले कल आपका कल कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए. लेकिन अगर वो येलो आ गया तो वेरिएंस आ गया. तो सबसे पहले हम उस वेरिएंस को मैप करते हैं और उस वेरिएंस को हम डिपिक्ट करते हैं एक डायल के जरिए, जिसमें हम आपको आप ही की जिंदगी, यू एंड योर वन लाइफ गेट्स डिपिक्टेड टू यू, सेइंग हे दिस इज योर वन लाइफ. What is the legend? Legend has green that says happy and productive. Yellow says lazy or busy. Red says it wasn't a good day. और अगर आपने 9 बजे तक इसको सिलेक्ट नहीं किया, जिसका कारण या कोई वजूहात आपके पास नहीं है, क्योंकि आप अगर 6 घंटे ऐप पे रहते हैं. तो मैं एक साहब के पास में गया, एक वाइस चांसलर साहब थे, वो कहने लगे बच्चों के ऊपर वैसे ही इतना स्ट्रेस रहता है, वो कहाँ से इन चीज़ों को कर पाएंगे. सो आई सेड आप बच्चों को बुलाइए और उनसे कहिए कि मुझे 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक की अपनी टेलीफोन यूसेज दिखा दे, स्क्रीन टाइम यूसेज दिखा दे. दैट्स वेयर द आंसर इज. दे गो रैंडम, दे गो एम्बिगुअस.
So this app is like already looking very interesting to me, and I can't wait to find out more about it. So can you please quickly, take us through the features of the app, what all it has, Certainly, yeah. So allow me to wear my spectacles and to be able to see clearly and tell us clearly. well, right? life needs to be seen clearly. दिक्कत तो यही है कि आज हर एक आदमी अपनी धुंध में खोया हुआ है. He's lost or she's lost in a cloud of his or her own, and that is the challenge. So the app does a few things, interesting things, and we'll discuss these one by one as we go along. It does happiness index, which I just showed you, and I shared that with you. It goes ahead and maps the variance between your expectation and your experience. So you go ahead and select, okay, I expected to be green out of 365 days, 180 days, but I was actually green only on 90 days. So 90 divided by 365, that becomes your happiness index. Simple. Oh, Right? So it's that simple. Then comes the mind map. Maps are all about navigation. And we've created about 12 aspects of your life. So one is mind map. What are the 12 aspects? 6 of which are IQ, which are left brain, and 6 of which are EQ, that are right brain. So Okay. those are 4 features, all put into a single screen. Why did we do this? So we said, as you're going ahead and updating any timeline on social media, you don't connect your dots. आपको समझ नहीं आता है कि आप कहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे कब जंप कर गए, आपको समझ नहीं आता है. The story is that you enter Google through a door, but you are never found alive coming out of the same door. आप उस दरवाजे से वो Google आपको कहीं घुमा के कहीं और ले जाता है, और फिर उसके बाद में कहीं और ले जाता है, और यही चलता रहता है. एंड देन वो नीचे जब आप अपनी ट्रे में देखते हैं तो वहाँ पे आपको 25 आइकन नजर आते हैं. आपने 25 साइट्स खोल ली. उसमें क्या हुआ? आपने अपने दिमाग के 25 विभाजन कर लिए. यू एक्चुअली वेंट एंड स्लाइस्ड योर माइंड इन 25 little slices. And we spoke about epigenetics. तो एपीजेनेटिक्स में होता ये है कि हम अपने आप की एक बड़ी डिमिनिश सी इमेज बना लेते हैं. इफ वी आर नॉट कंसोलिडेटेड, इफ वी आर नॉट स्ट्रेट, इफ वी आर नॉट वन, हाउ कैन यू गो ahead and claim that you're happy or that you're an individual? So ये EQ and IQ, left brain and right brain, mind map. Then we go to mind share. okay. माइंड मैप इज अबाउट नेविगेशन. जिन एस्पेक्ट्स के अंदर आप पोस्ट करते रहते हैं, अपनी अपडेट्स को डालते रहते हैं, वो एस्पेक्ट्स तो आपके ग्रीन रहते हैं. तो ये माइंड मैप में आ गया. जिनको आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते से अपडेट नहीं किया, वो येलो, रेड या ग्रे हो जाते हैं. सो देन दैट्स अ स्पर फॉर यू टू, हे लेट मी गो बैक टू माय माइंड मैप. ऑन द माइंड शेयर साइड ऑफ द स्टोरी, इट्स वेरी सिंपल. You only have 12 aspects. हमने कल बात की कि your mind is like an attic. You can stack it up with furniture, which is useful for the maintenance of the attic. The walls तो उसके इलास्टिक नहीं है. तो जब भी आप कोई नई चीज़ उसके अंदर डालते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपको बाहर निकाल के फेंकनी ही पड़ती है. तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपने 200 पोस्ट किए या 100 पोस्ट किए, तो उसका एक इक्वल परसेंटेज हर एक एस्पेक्ट में जाना चाहिए. अगेन द 12 एस्पेक्ट्स. सो अगेन वी मैप योर IQ and your EQ pertaining to only your mind share, कि आपका माइंड कहाँ जा रहा है उसके ऊपर. और इसमें आप देखेंगे कि So अगर basically anything that we do or say or any thought we have, have to be like going into any of these 12 brackets. Correct. Yeah, you said it. Brilliant. So these 12 brackets are actually your life, because when COVID came, and these 12 aspects took us about 24 months to be able to arrive at these 12 aspects. We discussed it with rickshawalas, we discussed it with taxi drivers, we discussed it with celebrities, we discussed it with politicians, we discussed it with sports people, with cinema people, with all kinds of bureaucrats, we discussed it with educationists, we discussed it with students. उससे निकाल करके जो हमारा शोध हुआ, जो हमारी रिसर्च हुई, तब हमें समझ में आया कि ये 12 चीज़ें ही तो ज़िंदगी में ज़रूरत हैं. Okay. और उन चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे आफ्टर आई एक्सप्लेन टू यू लॉन्ड्री लिस्ट क्या है. सो एक हो गया माइंड मैप जो हमने आपको दिखाया, एक हो गया माइंड शेयर, और माइंड शेयर के अंदर हमने आपको दिखाया IQ, EQ. उसके बाद में एक है आपका टाइमलाइन. तो जब टाइमलाइन पे आप जाते हैं तो मज़े की बात यह है कि इट सेज ऑल पोस्ट एंड माई पोस्ट. ऑल पोस्ट तो आप सभी की पोस्ट देख ही रहे, उसके अंदर आपकी अपनी पोस्ट भी दिख रही है. लेकिन माई पोस्ट में हमने सेग्रीगेट कर दिया आपकी पोस्ट को. क्यों किया? बिकॉज हमने ये महसूस किया कि हमारा एंडोक्रिन सिस्टम इससे बड़ा प्रभावित होता है सोशल मीडिया से. कैसे होता है? तो आप 2-2 सेकंड के अंतराल पे आप लिख देते हैं, यू राइट RIP, देन यू राइट वाओ, देन यू राइट कांग्रेट. यानी महसूस तो आपने किया ही नहीं. सो वी सेड अगर आपने महसूस नहीं किया तो हम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ में, कि 2-2 सेकंड के बाद में आपने RIP लिखा, फिर वाओ लिख दिया, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया. तो जब आप अपनी टाइमलाइन को रियलाइज करने लगते हैं तब आपको समझ आता है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ.
मुझे महसूस करना चाहिए. अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो आपका एंडोक्रिन सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा. एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर थिंग लाइक स्ट्रेस, infertility, importance, and importance not just of body but importance of mind, infertility of mind. तो हम लोग अपने आप को कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग धुंध में खोए रहते हैं. एंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर स्ट्रेस. सो दैट इज़ योर एंड जब आपको अपडेट करना है तो आप जाइए, इसको प्लस के साइन को करिए, एंड फिर वो कहता है अब आपको अपडेट करना क्या है. सो देन दीज 12 एस्पेक्ट्स ओपन अप. अब ये 12 एस्पेक्ट्स हैं क्या? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोरी वी गॉट डॉक्यूमेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, आउटिंग्स एंड वॉलेट या एसेट्स आप कह लीजिए. ये 6 एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहते हैं, कोई और रहे ना रहे. यही आपके सच्चे दोस्त हैं जिनके साथ आपने कोविड में भी यू वर एबल टू कम अप टू स्पीड आउट ऑफ द कोविड. इफ दीज 6 थिंग्स वर नॉट देयर, यू वोंट बी सिटिंग हियर अलाइव टुडे. फिर जो राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन इज ऑल अबाउट इमोशनल एस्पेक्ट्स. तो इमोशनल एस्पेक्ट्स के अंदर जब हम लोग गए तो हमने ये महसूस किया कि इमोशनल एस्पेक्ट्स के अंदर जो है आपकी थॉट्स आती हैं. सो व्हाट आर दोज थॉट्स? द थॉट्स आर एम्बिशन, कमिटमेंट्स, कन्फेशन, कॉन्शियंस, डिलेमास एंड इनहिबिशंस. ये 6 की 6 चीज़ें महसूस करना ही आपके अंदर जूसेस को प्रवाहित करता है. सो द राइट ब्रेन हैज़ ऑल्सो गॉट 6 एस्पेक्ट्स. वन इज एम्बिशन, one is commitments, one is confessions, one is conscience, one is dilemmas and one is inhibitions. अब हमने जल्दी जल्दी में कह दिया तो शायद लोगों को रजिस्टर ना, आपके व्यूअर्स रजिस्टर ना कर पाएँ, लेकिन ये 6 के 6 चीज़ें जो हैं ये आपके एंडोक्रिनल जूसेस को प्रवाह करने में मदद करते हैं. So let's go through the complete list of this, and then we can one by one analyze and see what exactly is happening in which portion. Correct. So we discussed mind map, then we discussed mind share. Mind share is this, that if you've updated and let's say 100 posts, equal number of the share of that post should go into every aspect. तब तो आपका mind share है. अब हम आपसे पूछें कि ऐसा क्यों? अब आप देखिए कि कोई भी एक एस्पेक्ट के ऊपर अगर आपका वजन ज़्यादा हो जाता है तो कोई दूसरा एस्पेक्ट सफ़र करने लग जाता है या वो ग्रे हो जाता है. जैसे आपने आइकन में भी देखा कि देयर इज़ ग्रीन, देयर इज़ येलो, देयर इज़ रेड, देयर इज़ ग्रीन, देयर इज़ येलो, देयर इज़ रेड एंड देयर इज़ ग्रे. So it really shows where you're tilted more. Yeah, it tells you where it is that you're tilted, and then it tells you to come back from too much heaviness on one aspect. So that's your mind share. इसके अलावा हम IQ measure करते हैं, EQ measure करते हैं. What is IQ? IQ is nothing but IQ is basically your left brain. आपका left brain, आपका IQ house होता है left brain में, तो एक left brain भी कर लेते हैं, एक IQ भी कर लेते हैं. राइट. सो दोज आर 2 अदर फीचर्स. फिर उसके बाद में आपके राइट ब्रेन पे चले जाते हैं तो उसमें EQ जो होता है वो आपके राइट ब्रेन में होता है, तो राइट ब्रेन भी हो जाता है, एक EQ भी हो जाता है. अब आपने एक हैप्पीनेस इंडेक्स कर लिया, एक EQ कर लिया, एक IQ कर लिया, एक राइट ब्रेन कर लिया, एक लेफ्ट ब्रेन कर लिया, राइट. एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कर लिया. इमोशनल लर्निंग जो है, इमोशनल लर्निंग का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि जो आपके राइट ब्रेन में जा रहा है वो है आपका इमोशनल, और जो आपके लेफ्ट ब्रेन में जा रहा है वो है आपका सोशल. सोशल इज थिंग्स दैट यू कैन सी, टच, टेस्ट, स्मेल एंड हियर, राइट. तो वो 5 चीज़ों के ऊपर निर्धारित हमने कर दिया. So basically you have created or curated an entire personality list for a person. Correct. So let us dive deep into this and start with mind share. Like what exactly happens in that area? Okay. So what is mind share? Mind share says that, like I said, if you've updated 100 posts, then those posts will go here. Let's look at the legend. Legend says for aspects that are balanced are green, aspects that are a little stressed become yellow, aspects that are overstressed become red. Okay. जैसे जैसे आपके कुछ एस्पेक्ट्स ग्रीन से येलो और येलो से रेड की तरफ अग्रसर होंगे, वैसे वैसे कुछ एस्पेक्ट्स आपके ग्रे होते चलते चले जाएंगे, बिकॉज आप उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे. यू नॉट इवन लुकिंग एट देम. व्हेन यू नॉट लुकिंग एट देम, दोस टर्न ग्रे. सो द क्यू इज दैट द मोर यू अपडेट योर ग्रे एस्पेक्ट्स, the more your red aspects will start coming, because समय उतना ही है, जगह उतनी ही है, पोस्ट उतनी ही है. तो जैसे जैसे आप अपने ग्रे एस्पेक्ट्स को अपडेट करते हैं, आपके बहुत सारे रेड एस्पेक्ट्स हैं वो येलो होने लगते हैं और येलो एस्पेक्ट्स आपके ग्रीन होने लगते हैं, तो आप एक बैलेंस की स्थिति में आ जाते हैं, which is what we discussed. So this is how one can try to balance itself or himself or herself and try to achieve some semblance of normalcy in life. Correct. So moving on, like the next aspect I would want to understand is the EQ part of it. Like how Right. does that? Right. So EQ is basically emotional quotient. Emotional quotient
resides in the right brain. Okay? तो एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। राइट ब्रेन के अंदर इमोशनल क्वोशंट के आपके 6 अहम चीजें होती हैं, विच इज वन इज एम्बिशन। आपकी हम सबकी एम्बिशन, अब देखिए एम्बिशन के अंदर वो रेड दिखा रहा है बिकॉज मैं सिर्फ अपनी एम्बिशन ही सोच रहा हूँ। और उसके बाद में है कमिटमेंट्स। आई हैव कमिटमेंट्स टुवर्ड्स माय फैमिली, टुवर्ड्स माय सोसाइटी, टुवर्ड्स माय इकोसिस्टम, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, यू नो, टुवर्ड्स माय हाइजीन, टुवर्ड्स माय चिल्ड्रन, टुवर्ड्स माय फैमिली। इतनी कमिटमेंट्स हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं बिकॉज हम तो धुंध में खोए हुए हैं। सो दैट इज योर कमिटमेंट्स। देन वी टॉक अबाउट कन्फेशंस। कन्फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कन्फेस नहीं कर पाते तब तक आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। आप एक जेल के अंदर, आपका दिमाग बंद हो जाता है, आपने कुछ गलत किया, आपको कन्फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And you become true to yourself. You become true to yourself. You see, so confession is very important. How true are you to yourself? Then there is conscience. आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोगों से पूछें कि भाई आपकी कॉन्शियंस क्या है। ये सवाल मेरा टीचर से भी है। मैं टीचर से भी पूछता हूँ, आप बताइए आपकी कॉन्शियंस क्या है, तो उन्हें पता नहीं है कॉन्शियंस क्या है। मैं उनसे पूछता हूँ आपके इनहिबिशंस क्या है या आपके डायलेमास क्या है, उन्हें पता नहीं है हमारे डायलेमास क्या है, इनहिबिशंस क्या है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन सड़क के ऊपर आता है, वो आपसे कहता है कि आप साहब चलिए मैं आपको जन्नत की सैर कराऊंगा, और वो उसके पीछे जाते तो है बच्चा बन के, बट वो आपको चूहा बना करके एक नदी के अंदर डाल के आ जाता है। राइट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। Why does that happen? That happens because we lose our free will, we surrender our free will to the will of the Google or to the will of the YouTube. Now you're reclaiming your will. So we spoke about the 6 Sigma model of happiness. The 6 Sigma model of happiness says that there are 6 questions. Now when you go, so अभी आपकी सोकिंग चल रही है, जब तक आपको पता नहीं है तब तक तो आप सोक हो रहे, अब आप सीकिंग शुरू करिए। जब आप सीकिंग शुरू करते हैं उसके 6 क्वेश्चन हैं, who, what, when, where, why and how. तो अब आपको ये नहीं पता कि कॉन्शियंस क्या है, तो जाइए ना यूट्यूब में पूछिए व्हाट इज कॉन्शियंस, तब तो यूट्यूब जवाब देगा। अदरवाइज तो आपको सलमान खान दिखाएगा। राइट, और सलमान खान देख करके आप कहीं सलमान खान बनने की कोशिश करेंगे, अपना फिल्टर निकालेंगे, अपनी तस्वीर खींचेंगे और अपने आप को अपने से ही जुदा कर लेंगे और कुछ और बन जाएंगे। राइट, सो अब आपके अंदर ये लर्निंग आ जाती है, दिस इज टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी। अब आपके अंदर ये लर्निंग आ जाती है दैट आई नीड टू नो व्हाट इज कॉन्शियंस, वेयर इज कॉन्शियंस, हाउ इज कॉन्शियंस टू बी फाउंड आउट, हाउ डू आई इंप्रूव माई कॉन्शियंस, you know, so who will be responsible for my conscience, whose conscience am I responsible for? तो who, what, when, where, why and how से जुड़े 6 सवाल, और इन 6 सवालों को अलग अलग कॉकटेल्स में आप अगर इस्तेमाल करें कॉन्शियंस के संदर्भ में, तो यू नो यू गेट टू अंडरस्टैंड, हे व्हाट इज कॉन्शियंस, व्हाट इज कमिटमेंट्स, what is inhibitions, what is dilemmas, and so on and so forth. So that's what is pretty much taking care of the emotional aspect of a personality. Correct. So now it will be very interesting to understand the IQ part of this. How does that help us? So the IQ aspects are rational aspects that you can touch, taste, see, smell and hear. 5 senses. We spoke about 5 senses, and then we spoke about the 5 elements of nature last time. The 5 aspects of your rational self are, you must know where is it that your documents are. आपको पता होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। क्या डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स सच एज you have an Aadhaar card, you have a driving license, you have your medical records, right? आपके medical records तो पता होने चाहिए आपको, आपने लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट कराया, आपके क्रिएटिनिन एसिड क्या था, अभी आपका क्रिएटिनिन, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने डॉट्स। बिल्कुल। आपका वेट क्या था, अब आपका वेट क्या है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। देन देयर इज फैमिली। तो व्हाट इज हैपनिंग विद द फैमिली? कुछ ना कुछ करते रहो ना, आप ही की फैमिली है, आपसे जुदा तो है नहीं। अब हमने कल बात की कि हर एक आदमी आज ये सोशल मीडिया में क्यों चला गया है। सोशल मीडिया में हम सिर्फ चले गए वैलिडेशन के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली हमें कहती है, अग्रसर करती, कुछ सोचो, कुछ आगे करो, लेकिन सोशल मीडिया में हमें कोई नहीं कहता कुछ आगे करो। कहते हैं आपने एक तस्वीर डाल दी, हमने लाइक कर दी, आपकी वैलिडेशन हो गई। तो होता यह है कि जब हम इन एस्पेक्ट्स को देखने लगते हैं, लेफ्ट ब्रेन के एस्पेक्ट्स को, तो उसके अंदर आता है हमारा फैमिली। हमारा फैमिली से जुड़ाव क्या है? आज मेरे पिताजी अच्छे थे, फैमिली। आज मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब है, फैमिली। मेरी ग्रैंडमदर ने आज मुझे कॉल नहीं किया या मैंने अपनी ग्रैंडमदर को कॉल नहीं किया, फैमिली। आपको अपनी तारें तो जोड़नी पड़ेगी, वरना एक दिन आएगा जब आप गुजर जाएंगे ज़माने से, ज़िंदगी से, और आपके बच्चे कहेंगे डार्लिंग माता पिता तो अब रहे नहीं, तो आज चलो आज जाके उनकी फेसबुक की वॉल के ऊपर में डाल देते हैं RIP डैड, और हम लोग डिनर करके आते हैं।
समझ रहे हैं आप? तो हमारा जो RIP से जुड़ा हुआ जो हमारा इमोशनल सेल्फ है वो भी खत्म हो गया। इसलिए रैशनल सेल्फ से इमोशनल सेल्फ की तरफ जाना जरूरी है। इसलिए IQ से ही EQ की तरफ आप अग्रसर होते हैं। जब तक आप इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, जब तक आप इन चीज़ों से ज्ञान ले नहीं पाते हैं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। सो दैट इज द, सो वी जस्ट एक्सप्लेन इमोशनल EQ and we explained IQ. We explained your left brain, we explained your right brain. And is there any kind of a social learning? I mean, I just saw a tab for that. So what about social learning? How does that Correct. help us? Or So जो आपका EQ है, that is your left brain aspects, which is basically all about social. आपका IQ डेवलप कहाँ से होता है? संसार से होता है। संसार में जो आप देख रहे हैं, चख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ से आपका IQ डेवलप होता है। सो IQ, लेफ्ट ब्रेन, सोशल, एक ही चीज़ों के 3 नाम हैं, राइट? EQ राइट ब्रेन, और वो राइट ब्रेन में हाउस होता है। EQ राइट ब्रेन और इमोशनल, ये तीनों चीज़ का एक ही नाम है, और उसको हमने ये 6 एस्पेक्ट्स के अंदर डाला। तो 6 एस्पेक्ट्स से आपका EQ निकलता है अलग से, 6 एस्पेक्ट से आपका IQ निकलता है अलग से, सोशल निकलता है अलग से, इमोशनल निकलता है अलग से, रैशनल निकलता है अलग से, और आपका इमोशनल निकलता है अलग से। सो यू अंडरस्टैंड, द सेम ऐप गोज देयर एंड डज मल्टीपल रोल्स। And how does it take care of the emotional learning part of it? ओके, सो इमोशनल लर्निंग में जैसा हमने आपसे कहा कि राइट ब्रेन के अंदर जब आप अपनी अपडेट करते हैं कि आपके इनहिबिशंस क्या है, तब आपको ये समझ आता है कि मेरा इनहिबिशन तो यह है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन एम्बिशन मेरा है कि मैं कल को बिल गेट्स बन जाऊँ। तो जब तक आप अपने इनहिबिशन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हाउ विल यू ओवरकम दैट इनहिबिशन? जब तक आप अपने कन्फेशंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हाउ विल यू ओवरकम योर कन्फेशंस? तो आपको कहीं ना कहीं वो बेड़ियां जकड़ के रख लेती हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनहिबिशंस क्या है? इनहिबिशंस कलर का इनहिबिशन है, मुझे पिंक पसंद नहीं है। इनहिबिशन खाने का पसंद, खाने से जुड़ा हुआ है, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। अरे क्यों पसंद नहीं है? खा के तो देखो। उसके बाद इनहिबिशन है कि मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता जो मेरे से सहमत नहीं होते। गलत है। अगर लोग आपसे सहमत नहीं होते तो आपका ओपिनियन है, और ओपिनियन बड़ा सेल्फ लिमिटिंग सा होता है। इफ यू आर ओपिनियनेटेड, you've gone ahead and self limited yourself, right? World is a much bigger place. World has all kinds of people, all kinds of shades of gray or white or red or blue. You got to accept every single thing. जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, लेकिन बात तो करो। तो इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए, राइट? स्पीकिंग के बारे में इनहिबिशन नहीं होती। उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, कन्फेशंस हो गए, रिग्रेट्स हो गए, इन सब चीज़ों को हमें पहले एक्नॉलेज करना आना चाहिए, जब तो हमारा इमोशनल ग्रोथ होगा। सो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बड़ा जोर दिया, दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। बच्चे, एंड आई पर्सनली बीन पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे पढ़े पढ़ाए तो आते हैं, लेकिन उनके अंदर सोशल एंड इमोशनल स्किल्स तो होते नहीं है। बिल्कुल। You know, they don't know how to come and greet me in the morning. You put them in front of 3 people, they can't even talk to them. Yeah. Something like people skills, those Yeah. are completely missing. Absolutely, absolutely. And why are they missing? Because a person is getting soaked in the internet, and वो अलग से उस दुनिया के अंदर चला जाता है जो एक बनावटी सी, दिखावटी सी दुनिया है, एंड वो अपने आप से ही जुदा हो रहा है। जब अपने आप से ही आप जुदा हो रहे हैं तो आपकी सोशल स्किल्स रही कहाँ? बिल्कुल। You understand? So I mean, what I can see here is कि एक पूरी पर्सनालिटी को, एक पूरे जो दिन का कार्यकलाप है किसी व्यक्ति का, उसको बहुत अच्छे से आपने निचोड़ के इसके अंदर उतारने की कोशिश की है। Now my mind comes to the most interesting part of it. वो क्या है? We are a cricket loving nation. Yeah. So एक सवाल जो हमारे दिमाग में हर 10 मिनट के बाद कौनता है कि स्कोर कितना हुआ? Yeah. So इसमें I mean, how do we get to know कि स्कोर कितना हुआ? वाह। How do you score? How So is scoring done? ये हमने एक अजब तरीका निकाला। हमने ये देखा कि फेसबुक पे आप जाते हैं और आप वहाँ पे 100 पिक्चरें डंप कर देते हैं और आप निकल जाते हैं वहाँ से। ये स्टेल्थ है। आपने कुछ चीज़ कही और आप भाग लिए। ट्विटर के ऊपर आप जाते हैं, आपने अपना पक्ष रखा और आप भाग लिए। उसके बाद दुनिया क्या कहती है, आधी दुनिया मर रही है, आधी दुनिया जी रही है, वो कह रहे हैं भाई ये गलत है, ये सही, आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो जाके सो गए, राइट? तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से हमारा ताल्लुक है। ये गाड़ी अच्छी थी, नहीं ये गाड़ी बुरी, ये पॉलिटिक्स अच्छा था, ये पॉलिटिक्स बुरा है, इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमें फोकस करना है अपने एजुकेशन पे। ये हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अपने एजुकेशन के ऊपर तो आप फोकस करिए, और वो फोकस तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी। क्रिएटिविटी तभी उत्पन्न होगी जब आपका माइंड खाली रहेगा। माइंड तभी खाली रहेगा जब आप ग्रस्त नहीं हो जाएंगे, ग्रसित नहीं हो जाएंगे उस सोशल मीडिया से, उस यूट्यूब से, उस
फेसबुक से, तब तो आपका माइंड खाली रहेगा, फिर आप वहाँ से कुछ नया इजाद कर सकेंगे, यू बी एबल टू इन्वेंट समथिंग और discover something. So that's what our honorable Prime Minister also says. So I'm sure this will help in breaking the shackles and opening up the minds. Correct. So the scoring part. So the scoring part, what we do is that every post that you update has been given a unique number. Okay. Okay. So let's say you updated 6 posts today. So we said 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomorrow you updated 2 more, 7, 8, 9, 10, so on and so forth. अब हमने क्या किया? If out of 100 posts, 12 have gone into health, then that is 12 divided by 100 and that is their index of health. Okay. Arithmetical modeling, simple, right? If there are only 2 posts that have gone into your family के खाते में आपके सिर्फ 2 posts गए, then you're only thinking 2% about your family, right? If you're thinking 50 things about your friends, then that is 50% of your posts are pertaining. अब वो क्या है? कहाँ से आए वो post? आपके जहन से आए, आपके दिमाग से आए. अगर आपके दिमाग से आए तो माइंड शेयर किसका था? आपका था. 50% तो आप सोच रहे हैं दोस्तों के बारे में, और फिर आप कह रहे हैं कि आप झाड़ू लेकर के उड़ जाएंगे और अचानक आप बिल गेट्स बन जाएंगे, तो कैसे बनेंगे जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर रखेंगे. तो ये है स्कोरिंग पार्ट उसका. इस स्कोरिंग पार्ट को फिर हमने और गेमिफाई किया. जिन एस्पेक्ट्स को आप बैलेंस रखते हैं वो एस्पेक्ट्स ग्रीन रहते हैं. एंड वी कैन गो बैक टू द ऐप एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि जिन एस्पेक्ट्स को आप ग्रीन, जिन एस्पेक्ट्स जो बैलेंस्ड हैं वो ग्रीन है, जो एस्पेक्ट्स आपके ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं वो रेड हो जाते हैं. अब एम्बिशन के बारे में सोच रहा हूँ, कमिटमेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि बाकी तो ग्रे है. अपने ग्रे एस्पेक्ट्स को आप अपडेट करिए, तो होगा ये कि अब देखिए ना, आपके 100 पोस्ट थे जिसमें 50 पोस्ट आपके कमिटमेंट्स के या आपके एम्बिशन के बारे में थे. अब आपके 150 पोस्ट हो गए और उसमें अब 50 पोस्ट ही है जो आपके एम्बिशन के बारे में है. तो 50 डिवाइडेड बाय 150 कम हो गया ना. पहले 50% था, अब 33% रह गया. तो जैसे जैसे आप अपने ग्रे एस्पेक्ट्स को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपके रेड एस्पेक्ट्स येलो हो जाएंगे, येलो एस्पेक्ट्स आपके. So basically the color coding here keeps us guiding. Yeah. I mean where we need to work on. Correct. Absolutely. So the color coding helps you with respect to guiding you. Okay, ये तो हो गया माइंड शेयर. माइंड मैप अलग है. माइंड मैप अलग कहता है कि भाई आपने अपने सब एस्पेक्ट्स को नेविगेट करना है. तो आपने अगर एम्बिशन को, फॉर इंस्टेंस हम एम्बिशन अभी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एम्बिशन यहाँ पे रेड है, और एम्बिशन रेड इसलिए है क्योंकि हम बहुत सोच रहे हैं एम्बिशन के बारे में. यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स है जो कि माइंड शेयर के अंदर हमारा ग्रीन दिखा रहा है. देखिए अब हम इसको माइंड मैप के अंदर जा कर के देखते हैं. तो माइंड मैप के अंदर जब देखते हैं हम, तो हमारा निकल करके आता है कि ये हमारा ग्रे है. इसी ग्रे है क्योंकि यहाँ तो हम गए ही नहीं. उसके अंदर तो ग्रीन है क्योंकि हमने सोच तो रखा है, लेकिन हम गए तो है ही नहीं वहाँ. एक हफ्ते से हम लोगों ने वो देखा तो है ही नहीं. सो इट गोज अहेड एंड यू नो इट्स लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स. यू कंटिन्यू टू प्ले विद योर ओन लाइफ लाइक यू प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स, एंड यू कंटिन्यू टू अलाइन योर लाइफ. आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा अभी थोड़ी देर पहले, एंड यू सेड क्यूरेट. वी एक्चुअली क्रिएट, वी क्यूरेट एंड वी सेलिब्रेट हैप्पीनेस. यही हमारा लोगो है. Right. Great. So we are like delighted to see this demonstration that we've just had, and I think it will certainly bring about a revolutionary change in the way we think or the way we use our social media, the way we try to represent ourselves on the all these applications all around and in the social circuit. So thank you so much for sharing all this knowledge and the way we can get connected with happiness through these channels or these mediums. Correct. And I'm sure this is going to help all of us immensely and bring some good to us. Thank you very much, Vikas. It was a pleasure sitting here and speaking to you. So like I said, you create, you curate, and then you celebrate your one life. Technology can be used both ways, negatively as well as positively. We all would agree that it can lead to a disconnect from reality as people spend more time interacting through screens rather than face to face. It's high time we use the technology to make life easier and happier. Such applications and efforts would surely go a long way helping us take control of our life, be happy, and make our lives a hub of happiness. Thanks for watching.